how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our very first chapter of class 4th, which is about food and digestion. Okay, so आज हम food के बारे में discuss करेंगे and the digestion process we are going to discuss about today. Okay, let's start the chapter. So why do we need food? हमें food क्यों चाहिए? Why do we require food? See, anything that people eat can be called food and we get our food from plants and animals. So students, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक person, human being या लोग खाते हैं उसे food कहा जा सकता है. And जो food हमें मिलता है वो हमें plants और animals से मिलते हैं. So कुछ main uses यहाँ पे food के given है. Number 1, it gives us energy to do work. Food हमें energy provide करता है to do work. It makes us strong. Food हमें strong बनाता है. It makes us grow. Food हमारी growth में helpful होता है. It builds our body. Food हमारी body को build up करता है. It repairs our body parts. हमारे body parts repair होते हैं because of food only. And it helps to fight against the diseases. And diseases के against fight करने में भी helpful is food only. So these are the main uses of food and these are the reasons that why do we need food. Now next is nutrients. See, the basic substances in the food that help the body to live, grow and perform all the function are called nutrients and nutrients provide nourishment to the body. So food के अंदर वो basic substances जो body को live, grow and सभी functions perform करने में helpful होते हैं, उन basic substances को nutrients कहा जाता है. Nutrients basically food के अंदर present होके जब एक person के through खाए जाते हैं, वो उस body को, उस person की body को nourishment provide करते हैं. And different foods के अंदर different kind of nutrients are there and the main nutrients which are needed by our body, that is carbohydrate, protein, fat, vitamin and mineral. Okay, so number 1 we have carbohydrates. Carbohydrates are the main sources of energy, that is why they are also called energy giving food. So carbohydrates सबसे main source of energy है and इसीलिए इन्हें energy giving food भी कहा जाता है. ये हमारी body को warm रखते हैं and हमारी body को energy provide करता है to do various functions. People who do more physical work like laborers need more carbohydrates than a person who sit in the office. वो लोग जो ज़्यादा physical work करते हैं like labor, ठीक है, उन्हें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है एक ऐसे पर्सन से जो कि ऑफिस में बैठ के वर्क कर रहा है बिकॉज वहाँ पे एनर्जी जो है फिजिकल एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और टू अ लेबर एज कम्पेयर टू द पर्सन हु इज वर्किंग इन दी ऑफिस. द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अब यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ सोर्सेज गिवन है लाइक ब्रेड, राइस, व्हीट, शुगर, पोटैटो, जैम, हनी एक्सेट्रा. एंड सभी कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे दे विल बी स्वीट एंड टेक्स्ट. ओके, now next we come to proteins. Proteins are body building food. There is food make our body grow well. So proteins को body building food कहा जाता है. Proteins के थ्रू हमारी body जो है वो properly grow करती है. Babies and young children को ज़्यादा protein required है as compared to an adult. Milk product, pulses यानी कि दाल, bean, pea, nut, meat, fish, soya bean and egg. These are the rich sources of protein. Okay? Now, next we come to what? Fat. See, fat provide energy for later use. They give us even more energy than carbohydrate. फैट हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो लेटर यूज यानी कि बाद में यूज करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है. इनफैक्ट फैट हमें कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. बटर, घी, ऑयल एंड मोस्ट ऑफ द नट्स, इनमें क्या होता है? फैट होता है. एंड आवर बॉडी हैज द एबिलिटी टू स्टोर एक्स्ट्रा फैट फॉर लेटर यूज. एंड हमारी बॉडी के पास क्या एबिलिटी है कि वो इस एक्स्ट्रा फैट को बाद में फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर लेता है. Fat also help us to keep warm. Too much intake of oily food makes us fat. It is unhealthy to be fat. And fat जो हमारी body को warm भी रखता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा oily food का intake करते हैं अपनी body के अंदर तो उससे हम fat हो सकते हैं. And fat होना is not good. It is unhealthy to be fat. Then next we have vitamins. Vitamins help our body to fight diseases. We must regularly have food which contain vitamins, though our body needs a very small quantity of them. वाइटामिन हमारी बॉडी को हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस. बीमारियों के अगेंस्ट लड़ने की जो एबिलिटी हमारे पास आती है दैट इज बिकॉज ऑफ वाइटामिन. हमें क्या रेगुलर बेसिस पे ऐसे फूड आइटम्स को लेना चाहिए जिसके अंदर वाइटामिन होते हैं, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी हमारी बॉडी को वाइटामिन की रिक्वायर्ड होते हैं. ज़्यादा वाइटामिन नहीं लेने हैं लेकिन रेगुलर बेसिस पे लेने चाहिए. ओके, अब वाइटामिन की जो नेम है दैट इज वाइटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के. एंड जो वाइटामिन हमको मिलते हैं दैट इज फ्रॉम द फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, फिश एंड नट्स. नाउ नेक्स्ट वी कम टू मिनरल्स. सी, फूड रिच इन मिनरल्स. वो फूड जो मिनरल्स में रिच होते हैं उनको प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है. दे कीप अस हेल्दी एंड फिट. या हमें हेल्दी एंड फिट रखते हैं. दे हेल्प अस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ एंड ब्लड. मिनरल्स के थ्रू हमारे बोन्स, टीथ एंड ब्लड जो है वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं. वेजिटेबल, मिल्क एंड सीरियल्स, दे आर रिच इन मिनरल्स. Okay,
सी कैल्शियम, आयरन, आयोडीन आर सम इंपॉर्टेंट मिनरल. कैल्शियम, आयरन एंड आयोडीन ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है. कैल्शियम जो है हमारी टीथ एंड बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. मिल्क, कर्ड, पनीर एक्सेट्रा ये सभी क्या है, फूड सोर्सेज है विच आर रिच इन कैल्शियम. देन आयरन, आयरन फॉर्म्स ब्लड इन आवर बॉडी. आयरन एक ऐसा मिनरल जो हमारी बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल, कैरेट्स एक्सेट्रा, दीज आर रिच इन आयरन. Next is, in addition to these nutrients, our body must have roughage and water. And in nutrients के साथ साथ हमारी body को क्या roughage and water की भी requirement होती है. Now what are they? Let's discuss it. Number one is roughage. Roughage is the fiber present in our body. It is necessary for the proper functioning of the digestive system. It adds bulk to the food. Roughage वो fiber material है, fiber matter है जो कि हमारे food में present होता है. ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है एंड साथ ही ये हमारे फूड में बल्क भी ऐड करता है. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ आवर फूड बिकॉज इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. वाटर हमारे फूड डाइजेशन में हेल्पफुल है. टू एक्सक्रीट वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी. वाटर हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्पफुल है. टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, एंड वाटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम करता है. So therefore we must drink 8 to 10 glasses of water every day. इसीलिए हमें पूरे दिन में 8 to 10 glasses of water पीना चाहिए. Now next is balanced diet. The amount of food we eat daily is called diet. So एक डेली बेसिस पे हम कितना अमाउंट ऑफ फूड खाते हैं उसको डाइट कहा जाता है. Water and fibrous food like fruit, vegetables, salad, etc. They should also be included in a diet. ये भी हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए. And a diet that contains proper amount of all the nutrients, water and fibrous food is called a balanced diet. And एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वाटर एंड फाइब्रस फूड के साथ, उस डाइट को बैलेंस डाइट कहा जाता है. ओके, चलो. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन ऑफ फूड. Now the food which we eat is broken down into simpler substances which can be absorbed by the body to release energy, and this process is called digestion. The process of digestion starts in the mouth and ends at anus where the undigested food is thrown out of the body. So student, वो food जो हम खाते हैं उसको क्या किया जाता है, सिंपलर सब्सटेंसेस से ब्रेक किया जाता है एंड उसके बाद हमारी बॉडी उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर देती है टू रिलीज एनर्जी. एंड इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है. हमारी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस जो है माउथ में स्टार्ट हो जाता है एंड कहाँ जाके एनएस इज अ पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ओनली, वहां जाके एंड होता है जिसके थ्रू हम सारा अनडाइजेस्टेड फूड जो है अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं. ओके, नाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. अब पूरा डाइजेशन प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे. नंबर वन, आई टोल्ड यू डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ. सबसे पहले क्या हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो हमारे माउथ यानी कि मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है. द फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ द टीथ. देयर इज अ डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इन द माउथ कॉल्ड द सलाइवा व्हिच मिक्स्ड विद द फूड. सबसे पहले फूड को च्यू यानी कि चबाया जाता है टीथ के थ्रू, है ना, टीथ की हेल्प से. और उसके बाद एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो हमारे माउथ पे प्रेजेंट होता है जिसको हम सलाइवा कहते हैं. ये सलाइवा क्या करता है, फूड के साथ मिक्स हो जाता है, उसको सॉफ्ट बना देता है सो दैट हम उसको इजीली swallow कर लें. Then the tongue helps to mix the food with the saliva. The saliva changes the starch present in the food into sugar. That is why when we chew on a piece of bread for a long time, it tastes sweet. ठीक है. अब जो हमारे माउथ में टंग है वो क्या होती है, टंग उस फूड के साथ क्या करती है, सलाइवा को मिक्स करने में हेल्पफुल होती है एंड सलाइवा उस फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको क्या शुगर में कन्वर्ट कर देता है. इसीलिए जब आप एक पीस ऑफ ब्रेड को बहुत लंबे टाइम पीरियड तक च्यू करते रहेंगे आपको वो स्वीट फील होना टेस्ट हो जाएगी. द च्यूड फूड देन गोज डाउन द फूड पाइप इनटू द स्टमक. उसके बाद जो च्यूड फूड है यानी कि जो आपने खाना चबाया है वो फिर कहाँ, फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है. Stomach is a sac-like organ where food is further broken down. More digestive juices mix with the food while it is churned by the stomach muscles. उसके बाद स्टमक है. स्टमक एक sac-like स्ट्रक्चर ऑर्गन है जहाँ पे फूड को और ज़्यादा ब्रेक किया जाता है. कुछ और डाइजेस्टिव जूसेस है जो उस फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं जब वो फूड हमारे स्टमक के अंदर चर्न किया जा रहा है by the stomach muscles. And from the stomach food passes into the small intestine. And अब स्टमक से उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे फूड को पास कर दिया जाता है. एंड इट इज अ लॉन्ग नैरो कॉइल स्ट्रक्चर. स्मॉल इंटेस्टाइन एक बहुत लॉन्ग नैरो कॉइल स्ट्रक्चर है. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं दैट इज बाइल जो कि लिवर से सिक्रेट किया जाता है एंड पेनक्रियाटिक जूस जो कि पेनक्रियास से सिक्रेट किया जाता है. ये दोनों ही जूस क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में आके उस फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं. And the process of digestion gets completed in the small intestine. Digested food in the liquid form is absorbed into the blood. And पूरा जो digestion process है वो इसी small intestine वाले part में जाके complete होता है and वो digested food को liquid form में क्या कर दिया जाता है,
बाय द ब्लड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद ब्लड जब उसे एब्जॉर्ब करेगा, फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू इस फूड को कहाँ लेकर जाएगा, एब्जॉर्ब्ड फूड को ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक लेकर जाएगा। देन द अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। No digestion takes place in large intestine. Water from the undigested food is absorbed by its wall and the solid waste is excreted through the anus. See, large intestine में कोई भी digestion नहीं होता है. In fact, उसमें अगर undigested food में कुछ भी water का retention बचा है उसको absorb कर लिया जाता है large intestine की walls के through, और उसके बाद जो बचा हुआ solid waste है उसको anus के through excrete कर दिया जाता है. Okay? See, they have shown you in this figure also. This was mouth. यहाँ से food हमारा digestion start हो जाता है. इसके बाद क्या फूड पाइप के थ्रू वो स्टमक में आता है, स्टमक के बाद हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड देन फाइनली इनटू द एनस. नाउ नेक्स्ट इज वेज ऑफ प्रिपेयरिंग फूड. अब फूड प्रिपेयर करने के डिफरेंट वेज को हम डिस्कस करेंगे. वी ईट रॉ एंड कुक्ड फूड. Foods and some vegetables are eaten raw. The raw vegetables and fruits must be washed well before eating and this will free them from dust and germs. सो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, वी ईट रॉ एंड कुक्ड फूड, यानी कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको रॉ यानी कि कच्चा भी खाते हैं, कुछ को कुक करके खाते हैं. फ्रूट्स एंड कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनको रॉ खाया जाता है. रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को क्या खाने से पहले प्रॉपरली वॉश करना इज वेरी नेसेसरी, बिकॉज इससे क्या होता है उनमें से जितना भी डस्ट या जर्म्स है वो रिमूव हो जाते हैं. मोस्ट ऑफ द फूड इज कुक्ड बिफोर ईटिंग, एंड ज्यादातर ऐसे फूड आइटम है जिनको खाने से पहले कुक किया जाता है. कुकिंग इज यूजफुल बिकॉज इट मेक्स द फूड मोर टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट. Germs present in the food are also destroyed during cooking and it makes food safe to eat. अब कुकिंग से क्या होता है, कुकिंग काफ़ी यूजफुल है बिकॉज ये हमारे फूड आइटम को ज़्यादा टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट बनाता है. उसके साथ साथ उस फूड आइटम के अंदर जो जर्म्स भी प्रेजेंट है वो भी कुकिंग के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड वो फूड जो है सेफ हो जाता है टू ईट. राइट नाउ देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग फूड. अब हम क्या डिफरेंट वेज को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम फूड को कुक कर सकते हैं. नंबर वन इज बॉइलिंग. सबसे पहले बॉइलिंग. इसमें क्या, राइस, दाल, वेजिटेबल्स, इन सबको क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है इन वाटर. दिस बॉइल्ड वाटर शुड नॉट बी थ्रोन आउट बिकॉज इट हैज ऑल द न्यूट्रिएंट्स. एंड ये जो बॉइल्ड वाटर है इसको हमें थ्रो नहीं करना चाहिए बिकॉज इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. द नेक्स्ट वी आर स्टीमिंग. सम फूड लाइक इडली, बाटी, ढोकला आर कुक्ड बाय स्टीमिंग. स्टीम फूड डज नॉट लूज न्यूट्रिएंट्स. कुछ ऐसे फूड आइटम्स है लाइक इडली, बाटी, ढोकला, इनको क्या स्टीमिंग के थ्रू कुक किया जाता है. एंड स्टीम फूड जो होता है उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट लूज नहीं होता. देन बेकिंग. ब्रेड, बिस्किट एंड केक, इनको क्या एक अवन में बेक किया जाता है. रोटी को भी हम तवा और तंदूर पे बेक करते हैं. फोर्थ मेथड इज रोस्टिंग. सम फूड आइटम्स, अब कुछ फूड आइटम्स है लाइक चपाती, नान, पीनट, पोटैटो, मीट, ये इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बाय रोस्टिंग. रोस्ट करके या तो ऑन अ हॉट पैन या फिर एक बर्निंग कोल पर रोस्ट करके खाया जाता है. Then the next method is frying. Frying means what? To cook in boiling oil. Boiling oil में किसी फूड आइटम को कुक करना है, known as frying. पोटैटो, पूरी, पकोड़ा एंड टिक्की, ये इनको क्या फ्राई करके खाया जाता है. The next is points to be remembered while cooking. ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हमें खाने को कुक करते वक्त ध्यान में रखने हैं. That is, do not throw the water in which vegetables are boiled. It can be used for kneading the flour. ठीक है, कभी भी उस वाटर को जिसमें आपने वेजिटेबल्स को बॉईल किया है उन्हें आप थ्रो नहीं करना चाहिए इस वाटर को, बिकॉज उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. सो आप उस वाटर को क्या फ्लावर यानी कि आटा गूंथते वक्त क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हैं. Do not overcook the food as it can destroy the nutritive value of the food. कभी भी खाने को ओवर कुक नहीं करना चाहिए, उससे खाने की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो खत्म हो जाती है. Then always cover the food while cooking. It helps to preserve the nutrients in the food. And खाना बनाते वक्त हमेशा फूड को कवर करके रखना चाहिए, इससे उस खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो खाने में ही प्रिजर्व्ड रहते हैं. Okay? Now the next topic is junk food. So some food stuff although tasty are unhealthy for us. They are called junk food. So कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स है, फूड स्टफ है जो कि टेस्टी तो होते हैं लेकिन हमारे लिए अनहेल्दी हैं एंड इनको जंक फूड कहा जाता है. They contain too much of fat and sugar, so we should avoid junk food. Because junk food के अंदर बहुत ज़्यादा फैट एंड शुगर होता है, इसलिए हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए. लाइक फ्राइज, चिप्स, बर्गर, पिज्जा, केक, दीज आर सम जंक फूड्स. ओके, चलो नेक्स्ट इज गुड ईटिंग हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन. अब यहाँ पे कुछ अच्छी ईटिंग हैबिट्स गिवन है जो एक डाइजेशन के लिए, अच्छे डाइजेशन के लिए ज़रूरी है. So for the proper digestion of food, we should observe the following simple rule. Number 1, food should be chewed well. सबसे पहले आपको खाने को बहुत अच्छे से chew यानी कि चबाना चाहिए. While eating, one should be in a happy state of mind. जब भी आप खाना खाते हो तो हमेशा खुश होकर दिमाग को बिल्कुल ठंडा रख के अच्छे से हमें खाने को खाना चाहिए. Then food should be taken in clean utensils and clean surrounding. खाना आप जब भी खाएंगे तो हमेशा साफ बर्तन में एंड साफ जगह पे बैठकर खाएंगे.
Then food should be taken at fixed hour. खाने को एक fixed hour या time period के बाद हमें लेना चाहिए. Food should contain right amount of carbohydrate, protein, fat, mineral and vitamin, the right amount of all the nutrient form a balanced diet. And जो खाना आप खा रहे हैं उसके अंदर एक right amount of carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral present होने चाहिए. बिकॉज एक ऐसा खाना जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स एक राइट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं वो हमारा एक बैलेंस डाइट बनाती है जो कि एक हेल्दी पर्सन के लिए अच्छी होती है. ईट इनफ बट नॉट टू मच. पेट भर के खाना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. ईट हाइजीनिक एंड फ्रेश फूड. फ्रेश होममेड फूड इज गुड फॉर हेल्थ. हमेशा हाइजीनिक एंड फ्रेश फूड खाना चाहिए. फ्रेश होममेड फूड यानी कि घर का फ्रेश जो खाना बना है दैट इज गुड फॉर हेल्थ. ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक इज फूड प्रिजर्वेशन. All the food items get spoiled at room temperature after some time. Such foods give out foul smell and bad taste. And for long use, the food items should be preserved. See, सभी फूड आइटम्स जो हैं कुछ देर बाद क्या होते हैं रूम टेम्परेचर में स्पॉइल यानी कि खराब होने लग जाते हैं. ऐसे फूड आइटम्स में एक बहुत गंदी स्मेल एंड एक बहुत बैड टेस्ट आना शुरू हो जाता है. एंड इसीलिए किसी भी फूड आइटम को अगर आपको लंबे समय तक यूज करना है तो उसको प्रिजर्व करना जरूरी है. सो द प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रिजर्व द फूड आइटम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इज नोन एज फूड प्रिजर्वेशन. सो एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आप किसी भी फूड आइटम को एक लंबे टाइम पीरियड तक सेफ रख सकते हैं, प्रिजर्व रख सकते हैं, दैट इज नोन एज फूड प्रिजर्वेशन. ओके, एंड डिफरेंट वेज यहाँ पे गिवन है जिसके थ्रू हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. दैट इज नंबर 1 रेफ्रिजरेशन यानी कि आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, बॉइलिंग कर सकते हैं, कैनिंग, पिकलिंग, ड्राइंग. So these are the methods by which the food can be preserved for a long period of time. Okay, so that's all for the chapter. It's completed over here and I hope you all must have understood the chapter very clearly. We'll meet you very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.